ESC চাক লাগিব আসামৰ ছোৱালী আহিলে ইয়াত ভোটৰ অধিকাৰ নিদিয়ে একবাৰ নিদিয়ে কিয় নিদিব নিজৰ গাঁৱৰ ছোৱালী নিজৰ গাঁৱত বিয়া পাতিবলৈ চাদী কৰিবলৈ কোনো নাপায় মই আহিছো শিৱসাগৰ সি আহিছে অৰুণাচলৰ সি আহিছে সেই আসামৰ কেলে ক'ব এইটো কথা আগৰ মানুহৰ চাদী ক'ত হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে তাৰ নিচেছটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে সেইটো ক'ব লাগিব ইয়াত ক'বই লাগিব ইয়াত আজি ESC চাৰে পঞ্চায়তে ভোট কাটি দিছে এতিয়া মোৰ মানুহজনা আহিলে মোক দুজনক কাটি দিলে বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হ'ল মোৰ বিয়া হোৱা মোৰ ল'ৰা হোৱা হ'ল নাই নাই আগৰবাৰ নাই মানে আমি অৰুণাচলত থকা পৰা আমি এতিয়া অৰুণাচলৰ পৰা ডাইনত থকা ডাইনৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলো ইয়াতে এতিয়া ভৰালো মানুহজনা আহিলে আমাৰ বোৱাৰী আৰু মোৰ নাহিলে ডাইনত আছিলো ইয়াত ভৰাব পৰা নাই লেকাঙত অহা আজি কিমান বছৰ হ'ল মানুহজন আছে এই বহুত বছৰ হ'ল আজি ইমান বাচ্চাতে অহা ল'ৰা ছোৱালী কেইটা এই 10 বছৰ বেছি মোৰ নাতিয়ে 10 বছৰ হৈ গ'ল আগত কেতিয়াবা ইয়াতে দিছিলে ভোট ইয়াতেতো দুবাৰ ইলেকশ্যনত ভোট দিছো ডাইনতেতো বহুত দিছো পঞ্চায়ত ভোট দিছিলে পঞ্চায়ত ভোট এইবাৰহে আমি ভৰাইছিলো কাটি দিলে আমাক একো নিদো বুলি কৈছে মালিকক দিছে আমাক নাই দিয়া এইটো আমাৰ কি কথা কি অসমতে অৰুণাচলতে বিয়া হ'ব নেকি সেইটো ৰুলটো নাই ক'তো ইমানে আৰু কি ক'ম এতিয়া ESC আহিব লাগিব আমাক উত্তৰটো দিব লাগিব নাই আসামত কাটি দিয়া হ'ল এইটো ভোট এতিয়া দুবাৰ দিলোৱে পঞ্চায়তটোহে নাই পোৱা মানে MLA যিটো ভোট এইটো আপুনি দুবাৰ দিলে সেইটো দিলো এইটো পঞ্চায়তটো নাই উঠা নিদিয়া বুলি কৈছে অসমৰ এয়া পদ দেখাবলৈ কৈছে আমি অৰুণাচলৰ পদ আমাক কোনে দিব অসমৰ ছোৱালী হিয়াৰিং এটেণ্ড কৰিছিলো কি কৈছে তেতিয়া একো নাই সোধা ক'ৰ পৰা বিয়া হৈছে সুধিছে বছ ইমানেই আৰু বেলেগ নাই সোধা 2000 চনৰ পৰা ভোট দি আছো ইয়াত আৰু যি বিচাৰিছে মানে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত কিয় নাহিব এইটো ভোট এইটোৱে আমাক লাগে মানে আৰু মানুহজনৰ আহিছে আমাৰ কিয় কাটি দিছে ইয়াতে আগত জেনেৰেল ইলেকশ্যনতে ভোট দিছিলে দি আছো 2000 চনৰ পৰা দি আছো মই পঞ্চায়ত দিয়া নাই পঞ্চায়তটো 1 নম্বৰ আছিলে 1 নম্বৰৰ পৰা 2 নম্বৰলৈ আনিছো তেতিয়া 1 নম্বৰৰ পৰা সকলোবিলাক কাটি দিলে আৰু মোৰ মা ঘৰ তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তিনচুকীয়াৰ পৰা সকলোবিলাক কাটি দিলে চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা আনি মেলি ইয়াত জমা দিলো এতিয়া আমাক ইয়াত প্ৰব বিচাৰিলে কি প্ৰব বিচাৰিব আমাক সেইটোৱে লাগে মানে আমি আধাৰ কাৰ্ড আছে ইলেকশ্যন কাৰ্ড আছে পান কাৰ্ড আছে সকলোবিলাক দিয়া হৈছে এইটো এড্ৰেছটো কৰে লেকাঙৰে হয় এড্ৰেছ ইয়াৰে হয় মোৰ মিষ্টাৰৰ আছে পঞ্চায়তত আছে বাৰে দি আছে আৰু মোৰ নাই আৰু ল'ৰাজনৰ নাই মানে নাম ভৰ্তি কৰিছিলে না আগতো কৰিছিলো অহা নাই কিন্তু আকৌ এইবাৰো কৰিছো অহা নাই এইবাৰো আৰু বেটাৰ নাই বেটাৰ বয়স 19-20 বছৰ হ'ব এতিয়া ESC হয় ESCৰ পৰা আমি বিচাৰিছো বেটাৰ এইবিলাক দিলো বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কিবা কিবি বিচাৰিলে সকলোবিলাক দিয়া হৈ গ'ল কিন্তু কিয় নাহিলে এতিয়া কৰিছিলো হিয়াৰিঙত হৈ গ'ল বুলি ক'লে হৈ যাব আপোনাৰ হৈ গ'ল সকলোবিলাক ঠিকে আছে বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়া আমি গম পাইছো যে এতিয়া অহা নাই মই অসমৰ পৰা তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিয়া হৈছো আজি মই মানে জেনেৰেল ভোটটো মই দিলো কিন্তু মই পঞ্চায়তত মোৰ নাম হিয়াৰিং কৰা হৈছিলে কিন্তু নাম নাহিলে তেওঁবিলাকে ক'ৰ পৰা বিয়া হৈছো আসামৰ পৰা বিয়া হৈছো তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বুলি ক'লো কিন্তু হ'ব বুলি ক'লে হিয়াৰিং কৰা টাইমত মোক হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়া মোৰ নাম নাহিলে কিমান বছৰ হৈ গ'ল বিয়া পাতা ইয়াতে মোৰ বিয়া হোৱা 14 বছৰ হৈ গ'ল একবাৰ দিছে পঞ্চায়ত দিয়া নাই এবাৰ মই হিয়াৰিং কৰিছিলো কেঞ্চেল কৰি দিলে কিন্তু মই হেৰি জেনেৰেল ভোট দিলো কেলে কেঞ্চেল কৰিছে আপুনি এইটো অসমৰ পৰা অহা কাৰণে এইটো কেঞ্চেল হ'ল বুলি কৈছে এই বছৰ মানে ইয়াত মই ভোটৰ নাম উঠাবলৈ মোৰ বহুত টাইম লাগিলে কিন্তু এইবাৰ উঠাও হিয়াৰিং কৰো তেতিয়াও কয় আমুকটো ডকুমেণ্ট লাগে সেইটো আনি জমা দিওঁ তাৰপিছত আকৌ এটা ডকুমেণ্ট জমা দিওঁ জেনেৰেল ভোট মানে জেনেৰেল ভোটৰ কথা কৈছো তেনেকে বহুত ডকুমেণ্ট বিচাৰিলে কিন্তু বিচাৰি সেইবোৰ জমা দিলো তেতিয়া মোৰ জেনেৰেল ভোটটো আহি গ'ল কিন্তু পঞ্চায়তত এতিয়া মানে যেতিয়া হিয়াৰিং কৰিলো হ'ব বুলি ক'লে হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছত এতিয়া নাম নাহিলে মানে তেনেকে মোৰ সময় লাগিলে তাত বহুত ডকুমেণ্ট বিচাৰে এইটো চৰকাৰক মই ক'ব বিচাৰো এই সমাধানটো আমাক লাগিবই লেকাংবাসী ৰাইজক লাগিব সকলোকে লাগিব
ভোট দিয়ে আৰু এই লেটাঙত জন্ম হোৱা তেওঁবিলাকৰ নাম কিয় কাটিছে? তেওঁবিলাকৰ নাম ভৱিষ্যত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হ'ব অৱস্থা? তেতিয়াতো আমি অন্ধকাৰ পৰা বাহিৰে আৰু আমাৰ কি আছে? ভোটৰ যদি আমাৰ অধিকাৰে নাই তেনেহ'লে আমি এই লেটাংবাসীত আমাৰ কি অস্তিত্ব থাকিব? সেই সকলোৱে কওকচোন। আমাক লাগিব এই অধিকাৰ, আমাক লাগিব আৰু আমি কেতিয়াও নেমানো। আমাৰ সমাধান দিবই লাগিব চৰকাৰে। आज हमारा लेकांग में जितने लोगों का पंचायती राज इलेक्शन में जिनका वोट काटा गया था, किसी का जेन्युइन इशू था, किसी का कुछ ऑफिस तरफ से गलती हुआ होगा, इस तरह से जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने स्पीच दिया, वही चीज लेके आज जो हम लोग सुबह से हमारे लेकांग के जितने पब्लिक थे, जो विक्टिमाइज पब्लिक थे, सभी आए और ईएसी ऑफिस में ईएसी सर से, असिस्टेंट कमिश्नर से जो हम लोग का डिस्कशन हुआ, वही सेम चीज पब्लिक को रखा जनरल ग्राउंड में। वहां पे असंतुष्ट होके पब्लिक ने 0 पॉइंट में आज रोड ब्लॉकेट किया। रोड ब्लॉकेट करने का वजह यही था कि ईएसी खुद यहाँ पे आके उनको बताना होगा कि जिनका जेन्युइन इशू था या जिनका काटा गया है, उनको री इंक्लूजन होगा कि नहीं होगा, ये सभी का क्वेश्चन था। तो वही चीज ईएसी आके बताया है हम सभी को कि उनका कल से ही जितने लोगों का कटा हुआ है और जिनका जेन्युइन है वो आके एक बार रिव्यू करना है ईएसी ऑफिस में। तो मैं लेकांग के सभी जनता को मैं बताना चाहूंगा, जिनका जिनका कटा हुआ है वे सभी आए, अपना रिव्यू करें, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या चीज पे उनको काटा गया है, वो चीज ऑफिस में आके विद्युत मोहन बैठेगा, उसके साथ और 2-3 लोग बैठेगा, उनसे कंसल्ट करके उनको नया से फिर से इंक्लूजन कराना है। जो आसाम से शादी हुआ है ये लेकांग या अरुणाचल में, तो उन लोग का क्या होगा पंचायत इलेक्शन का मतलब? हाँ, जो एसी सर का, असिस्टेंट कमिश्नर का ये भी कहना है, जो हमारे बहन दीदी लोग आसाम से लेकांग में शादी हुआ है, उनका बेटा या बेटी का एनरोलमेंट जरूर होगा, लेकिन जो औरत यहाँ पे शादी हुआ है उनका जो है एनरोलमेंट फिलहाल नहीं होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्टेट पॉलिसी का ऑर्डर आया है, बोला है, हालांकि हमें नहीं दिखाया है, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जिनका जो लोग असम से यहाँ पे शादी हुआ है उनका सारे लोगों का एक इकट्ठा करके उनका एक मेमोरेंडम तैयार करना है, ईएसी थ्रो से सभी लोग साइन करना है और ईएसी के थ्रो से उसी मेमोरेंडम को अरुणाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। वहां अगर रिकमेंड करता है, नोटिफिकेशन निकलता है, तो जो है इन बहन और दीदी लोग का जो असम से यहाँ पे शादी हुआ है उनका फिर किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुआ है ईएसी ऑफिस के बाहर में। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको विस्तार से आप बताना चाहेंगे? नहीं, यहाँ में ऐसा हुआ है मैडम कि जो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक हो रहा है, मतलब क्योंकि आफ्टर 73rd अमेंडमेंट का बाद में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो खुद से सेल्फ गवर्नमेंट करना है, उनके पंचायत इलेक्शन होता है, उसमें ऐसा है कि यहाँ का लेकांग का काफ़ी सारा 2000 से ज़्यादा आदमी लोग का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन, विदाउट एनी रीजन। हाँ ठीक है, कोई इंडिजिनस यहाँ का लेकांग का इंडिजिनस नहीं है, बाहर से माइग्रेटेड होकर आया है और यहाँ का सोसाइटी से कोई लिंक अप नहीं है, उसको डिलीशन करो, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ का समाज का, यहाँ का सोसाइटी का, जो यहाँ से हज़ारों साल से बीतते आ रहा का यहाँ का इंडिजिनस आदमी का यहाँ में वोटर लिस्ट से नाम हटाया है, इसलिए ये गैदर हुआ है आज। तो पब्लिक का यही डिमांड है कि री वेरिफिकेशन करो, री से एनालिस्ट करो, उसी डिमांड का साथ में यहाँ में गैदर हो रहा है और ये कंटिन्यू होगा ये चीज़ जब तक जेन्युइन आदमी को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिलेगा, जेन्युइन आदमी को जो यहाँ में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, तब तक ये लोग जो हम लोग सब मिल के जो ये है जो यूनियन जो है यहाँ का सोसाइटी का सब लोग मिल के हम लोग मूवमेंट करेंगे और गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि एटलीस्ट वोटर लिस्ट से नाम तो मत काटो। ठीक है, आप पीआरसी तो आप दे ही नहीं रहा है, यहाँ का जो अरुणाचल का जो
जो है चीज़ आप दे ही नहीं रहा है, फिर आप वोटर लिस्ट से भी अगर नाम कटेगा तो क्या ऐसा गवर्नमेंट स्टेट का क्या मीनिंग रह जाएगा, गवर्नमेंट का वेलफेयर गवर्नमेंट का क्या मीनिंग रह जाएगा, जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है उसका क्या मतलब रह जाएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब रह जाएगा। और एक जो स्टेट का मीनिंग यही है पावर की, EAC सर है, EC असिस्टेंट कमिश्नर जो उसका हाथ में पावर है, उसको अच्छा से इम्प्लीमेंट करे, बायस ना करे, उसको हम लोग को टारगेट ना करे, यही है कहना। सर आप लोग क्या EAC सर के सामने में ये बात रखा था कि नहीं, और किस वजह से वोटर काटा गया इसके बारे में सर? वो तो चीज़ हम तो आज मीटिंग में आया है, हम लोग का एक अलग कमेटी है, उसमें कंटिन्यू कर रहा है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, वो लोग आप विस्तार से आपका जानकारी मिल जाएगा EAC सर का साथ में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है। लेकिन मेरा यही सवाल है कि काटता है तो काटता है, जैसे कि 200-300 काट दिया, जो यहाँ का इंडिजिनियस नहीं है वो लोग का काट दिया, अच्छा लगता है सुनने के लिए भी। 2000 से ज़्यादा आदमी लोग का वोटर काटना, जो पिछले बार वोट दिया है उसका नाम काट देना, ऐसे कोई मीनिंगलेस बात है ना, ये तो डेमोक्रेसी का ऊपर अटैक है ये। सर मैं एक सवाल रहेगा आपको कि जैसे कि ये रतन चेटिया जी जो मोरान है, जैसे आपने कहा है PRC वाला बात, तो आसाम गवर्नमेंट तो मोरान लोगों को PRC दे चुका है आसाम में, तो फिर यहाँ पे वो लोग अभी वोटर राइट्स मांग रहे हैं, जबकि आसाम का आदमी को ये अरुणाचल में वोटर राइट्स नहीं है पंचायत में। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक मोरान है, फिर भी वहाँ पे भी आपको PRC दिया जा रहा है और आप यहाँ पे भी अपना राइट मांग रहे हो, तो सर इस चीज़ को हम एक इन्फॉर्म कर रहे थे, आप ये इसको आपको आप नहीं तो पता नहीं होगा, आप इसको पढ़ा ही नहीं होगा इस चीज़ को, और न्यूज़ को आप अच्छे से फॉलो भी नहीं किया होगा। और गवर्नमेंट ऑफ असम क्या बोला है, जब तक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल PRC नहीं देता है तब तक हम लोग टेक केयर करेगा, इसी टाइप का एक ऑर्डर है, इसको आप तो अच्छे से पढ़ लीजिए तो मालूम हो जाएगा। नहीं वो तो सर सही है, लेकिन उसमें तो यहाँ के काफ़ी लोग, उसमें से आप भी थे वहाँ पे जिस समय आसाम गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था PRC देने के लिए, और आप लोग ने जश्न भी मना रहा था इस चीज़ को लेके कि आसाम गवर्नमेंट अभी दे रहे हैं बोल के, तो फिर आज आप भी यहाँ पे रैली पे मौजूद है सर, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ मौजूद है, हम लोग का आदमी लोग का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, इसलिए मेरा ये असम से हम लोग का कोई कनेक्शन नहीं है ना, असम से यही है कनेक्शन कि आप ऑर्डर लोग अच्छे से पढ़िए तब आपको मालूम होगा चीज़। नहीं फिर मोरान लोग ऑर्डर भी बहुत लंबा है, आप CM साहब असम CM का भी आप स्टेटमेंट देखिए, हम लोग को इसलिए दिया जा रहा है कि अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग को नहीं दे सक रहा है, और हम लोग डिमांड अभी भी हम लोग को PRC मिलना है अरुणाचल में, हम लोग का डिमांड ही यही है कि हम लोग को PRC मिलना है अरुणाचल में भी, हम मोरान हो, देवरी हो, आहूम हो, कछारी हो, यहाँ में सदियों सालों से बैठा हुआ है, सबको PRC मिलना है। और रहा बात जो असम गवर्नमेंट क्यों दे रहा है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, और स्टेटमेंट और ऑर्डर में क्लियरली बताया गया है कि जब तक अरुणाचल गवर्नमेंट अरुणाचल में बसा हुआ मोरान लोग को PRC नहीं देता है तब तक ही ये चीज़ है, जब कल दे देगा तो छोड़ देगा कल हम लोग। कल अगर अरुणाचल गवर्नमेंट आप बोलिए, मीडिया कवरेज उठाइए, मीडिया प्रेशर दीजिए पब्लिक ना कि अरुणाचल गवर्नमेंट PRC देने का साथ साथ ये नल एंड वॉइड हो जाता है ना, ये चीज़ ऑटोमेटिकली ये असम गवर्नमेंट जो अभी कंडीशनल PRC दे रहा है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पर्पस में यूज़ करने के लिए दे रहा है, इसी चीज़ को मतलब बोलने से नहीं होगा। ये इसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जब अरुणाचल गवर्नमेंट मोरान कम्युनिटी अरुणाचल को PRC दे देगा तब ये कागज़ नल एंड वॉइड हो जाता है एज पर द ऑर्डर। तो यही चीज़ आपको एवर कर दे रहा है और बाकी लोग भी ये चीज़ समझेगा। और हम लोग का अभी भी यही डिमांड है, लेकांग का जो जेन्युइन सिटीजन्स है, जो सदियों से यहाँ बसा हुआ है, सोसाइटी है, वो लोग को PRC मिलना है, डिमांड है वो हम लोग का। नहीं सर आपका बात को समझ गई मैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप लोग जश्न मना रहे हैं कि आसाम से आप लोगों को PRC हाँ मनाया है, हम लोग मनाया है, जश्न मनाया गया, फिर आप लोग कहीं ना कहीं साइड से एक दुख भी जता रहे हैं कि आपको अरुणाचल गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है सर। हाँ दुख है, वो दुख है। तो आप लोग एक्चुअल में आप लोग का जो बात है वो क्या है, हम लोग को समझ में नहीं। एक्चुअल में बात यही है कि हम लोग लेकांग का मालिक है, हम लोग मोरान लोग लेकांग में हम लोग का ज़मीन है, मेरे पुरदादा पूर्व पुरुष यहाँ में बैठा हुआ है, अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग को राइट नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हम लोग को कुछ भी सोसाइटी हेल्प मांग रहा है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दे तब भी हम लोग एग्री है। असम गवर्नमेंट हम लोग को ST दे, PRC दे, तेल पानी जो भी दे हम लोग ले लेगा, क्योंकि अरुणाचल गवर्नमेंट कुछ दे ही नहीं रहा है, इसलिए तो ले रहा है, जीना तो पड़ेगा सर। तो ऐसा नहीं हो जाएगा क्या कि अगर आसाम से ही आपको मिल रहा है और आप कह रहे हो कि आसाम से मिल रहा है तो वहाँ से ले लेंगे, फिर आप यहाँ पे भी डिमांड कर रहे हो अरुणाचल गवर्नमेंट? हाँ डिमांड करेंगे, अरुणाचल गवर्नमेंट को डिमांड रहेगा। दो साइड नहीं हो गया ना, कैसे दो साइड होगा? आप ऑर्डर को देखिए कि ऑर्डर में क्लियरली आप CM साहब का स्पीच को सुनिए, जब तक अरुणाचल गवर्नमेंट अरुणाचल में बसे हुए मोरान लोगों को PRC नहीं देता है तब तक हम लोग इसको एक कंडीशनल PRC देगा, वो चीज़ वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में ताकि यूटिलाइज कर पाए ये चीज़ में। और
ये है कहानी जो। और सर और एक लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि आपने भाषण में भी अपना कहा था कि मतलब जैसे कि बाहर के जो नॉन ट्राइबल है वो ट्राइबल में शादी करते हैं तो उनको पंचायत में वोट मारने का राइट नहीं है, इसके बारे में तो सर आपको पता है, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से नहीं, उसका बारे में प्रॉपर मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा एक नोटिफिकेशन और ऑर्डर निकला है, बोला है कि ट्राइबल आदमी भी अगर बाहर का किसी को शादी करके लाएगा तो उसको ये पंचायत में और वोटर में कुछ ऐसे कुछ एनलिस्ट नहीं होगा, तो वो तो एक नागरिक होने का राइट को कैसे फ्रीज कर सकते हैं ना, कि ये ऑर्डर ही नॉल एंड वॉइड है। अगर हम ही कोई किसी मेरा शादी करके लाएगा उसको अगर वोट देने नहीं देगा तो ये क्या, ये इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशनल का ये आइडियोलॉजी नहीं है, इंडिया का ही ये आइडियोलॉजी नहीं है, ये ऑर्डर नॉल एंड वॉइड है। ये इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा तो ये नॉल एंड वॉइड हो जाएगा। ये है कहानी इसका। धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। मेरा जो हमारा जो लकांग वासियों का पहला पॉइंट है, जो अरुणाचल का जो इंडिजिनियस और नॉट इंडिजिनियस का जो बात हो रहा है, जो इंडिजिनियस और नॉन इंडिजिनियस का जो बात हो रहा है, इसमें हमारा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं आने वाला फ्यूचर में। जो आने वाला फ्यूचर में जो हमारा लड़का बच्चा का प्रॉब्लम होगा, और साथ में जो हम लोग बाहर से आसाम से या अदर स्टेट से शादी करने का बाद उसका मतलब पति अगर वैसा एक्सपायर हो गया तो उसका कुछ भी वो नहीं रहेगा, मतलब उसका कुछ प्रमाण पत्र या उसका कुछ राइट नहीं रहेगा। इसके लिए हम अरुणाचल प्रदेश हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको लकांग वासी का तरफ से पूरा अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा राइट है वो राइट को देना है, वो राइट को डिप्राइव नहीं करना है, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन को देना है बोल के मेरा तरफ से और पूरा लकांग वासी का तरफ से अनुरोध करता हूँ कि वो चीज़ हमें अपना फंडामेंटल राइट, हमारा जो इलेक्शन का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो चीज़ वोटिंग राइट है, वो वोटिंग राइट से हम लोग डिप्राइव नहीं होना चाहिए, लकांग वासी डिप्राइव नहीं होना चाहिए, और जो हम लोग को नॉन इंडिजिनियस जो बोल रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए बोल के हम लोग जो इलेक्शन कमिश्नर से हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए। सर यहाँ में कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये लोग का वोट काट दिया गया है बोल के, सर उसका पीछे क्या वजह है सर? ये लोग आया भी है, कुछ अच्छा उनको रीजन नहीं दिया गया है, उन लोग का कहना ये है। और कई लोग आज आपके एसी ऑफिस में भी गए थे, तो क्या है एक्चुअल में इसका? वोट काट दिया ऐसा किसी का नहीं करता है। ये रोल में जो ऑलरेडी एनरोल हो गया उसका आपका ऑब्जेक्शन करने का, डिलीशन के लिए ऑब्जेक्शन करने का फॉर्म होता है, जिसका कटा है वो ने कोई ये किया होगा, ऑब्जेक्शन किया होगा डिलीशन के लिए, और उसको वेरीफाई करके हियरिंग में वो डिलीट हुआ होगा। और जिसका रिजेक्ट हुआ है देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करना होता है एनरोल करने के लिए, शायद वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ होगा। हैविंग सेड दैट, आज भी आया था मेरे ऑफिस में, मैंने यही क्लैरिफाई किया बिकॉज इट इज मैनुअली टाइप करके ये रोल बना रहा है, वो फॉर्म को देख के, जितना भी फॉर्म्स है वो देख के, तो कभी कभी इनएडवर्टेंट क्लरिकल मिस्टेक हो जाता है। जैसे भी जितना भी ऐसे केसेस है ऑलरेडी अभी तक 3-4 हम लोगों ने नोटिस निकाल के कोरिगेंडम इशू करके इंक्लूड कर दिया है। आज भी वही पता है, जहां में सब कुछ ठीक था बट इनएडवर्टेंटली कहीं रिजेक्शन हो गया तो उसको एप्लीकेशन दीजिए, सेटिंग द रीजंस, उसको रिव्यू करके अगर सही है तो इंक्लूड कर देगा, ये बता दिया सर। और महिला लोग काफी चिल्ला रहे थे, जो कह रहे थे दैट इज रिगार्डिंग इंडिजिनस एंड नॉन इंडिजिनस। 2019 का भी ये लोग रेफरेंस दे रहे थे, बट जो फॉर्म 4 होता है इंक्लूजन के लिए, उसमें 2019 में द वर्ड इंडिजिनस वाज नॉट इंक्लूडेड। तो इस बार जो है, जो फॉर्म है स्टेट इलेक्शन कमीशन में, उसमें इंडिजिनस वर्ड इंक्लूड किया है। तो अकॉर्डिंगली जो भी इंडिजिनस है उन्हें ही ये क्या है आपका ई रोल में जो हियरिंग था उसमें एक्सेप्ट किया हुआ है। जो कोई है जो बाहर का है तो यहाँ भी फिलहाल रह रहा है, तो दे आर डिमांडिंग दैट सिंस दे आर लिविंग हियर दे शुड बी एक्सेप्टेड एंड एनरोल्ड इन द ई रोल ऑफ पंचायत ई रोल। लेकिन इंडिजिनस नहीं है, चूंकि दैट इज अ डायरेक्शन फ्रॉम स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो हम लोग तो उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली दे वर रिजेक्टेड। थैंक यू सर।